Hello, I am Dr. Shivani Sharma, Head of Department in Biotechnology, Swami Shri Swarupanand Saraswati Mahavidyalaya, Hotko Bhilai. In this video, I will discuss about anther and ovary culture. Before study about anther culture, we have to know what is anther. In the flower, the male reproductive part of a flower is called the stamen. It is composed of a long tube called a filament and has a pollen producing structure on the end. This oval shaped structure is called the anther. Now we discuss about anther culture. The main purpose of culturing anther is to produce haploid plant. Haploid plant जिनमें single set of chromosome पाया जाता है. Culturing of anther obtained from unopened flower bud. इस flower bud को nutrient media के aseptic condition में inoculate किया जाता है जिससे callus tissue या embryoids का formation होता है. Callus tissue undifferentiated mass of टिश्यू होते हैं. नेक्स्ट पॉलन कल्चर. इसे माइक्रोस्पोर कल्चर भी कहा जाता है. पॉलन का एक्सट्रैक्शन एंथर को प्रेस या स्क्वीज कर किया जाता है. इसके पश्चात पॉलन के सस्पेंशन को फिल्टर कर एंथर डेब्रिस को रिमूव कर लेते हैं. इस प्रकार प्राप्त पॉलन को सॉलिड और लिक्विड मीडियम में कल्चर किया जाता है. आफ्टर सेल प्रोलिफरेशन हमें कैलस और एम्ब्रियो मिलते हैं जिसे हम सुटेबल मीडियम में ट्रांसफ़र कर हैप्लॉइड प्लांटलेट प्राप्त कर सकते हैं जिसे एम्ब्रियोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है. एंड्रोजेनेसिस यह एक प्रक्रिया है जिसमें एंथर और पॉलन कल्चर द्वारा हैप्लॉइड प्लांट इन विट्रो कंडीशन में प्राप्त किया जाता है जिसे एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड कहते हैं. इसे मेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है. एंड्रोजेनेसिस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस तथा इनडायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस. डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर जाइगोट की तरह बिहेव करते हैं. तत्पश्चात एम्ब्रियोइड व अल्टीमेटली प्लांटलेट का निर्माण करते हैं. इनडायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस की प्रक्रिया में माइक्रोस्पोर लगातार डिवाइड कर कैलस टिश्यू का निर्माण करते हैं जो कि डिफरेंशिएट होकर हैप्लॉइड प्लांटलेट बनाते हैं. यहाँ प्लांटलेट से मतलब है जिसमें स्मॉल रूटेड व शूट जर्मिनेटेड एम्ब्रियो पाया जाता है. इन दिस डायग्राम वी कैन सी द स्टेप्स ऑफ एंथर एंड पॉलन कल्चर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड. इन द फर्स्ट स्टेप we can take the unopened flower bud. Then we collect anther and surface sterilized with 70% ethanol and rinsed with distilled water. Now anther is gently separated and uninjured anther are inoculated horizontally on nutrient media. At least 10 to 20 anthers are plated on one petri dish. After 3 to 8 weeks, anther are proliferating and growing to callus. We know that callus is the undifferentiated mass of cell. Afterwards, it will be converted into embryo development. Now, it can make the haploid plantlet. Simultaneously, we can discuss about microspore culture. Anther are collected from the sterile flower bud. Then microspores are squeezed out by pressing anther against the side of the beaker with glass rod. Then anther debris are removed by nylon sieves. After washing, final suspension is piped into a small petri dish with solid or liquid media. After development of pollen embryo, haploid plantlet will be developed. Now, we can convert the haploid plantlet into diploid plant by the treatment of colchicine. Method of anther culture. As we seen in previous diagram, first we collect the unopened flower bud, then we surface sterilize. After surface sterilization, anther will be excised from the flower bud. Then we inoculate into the culture medium.
Here we can take MS media, nits and nis media or white medium. Then we can incubate the culture at 25 degrees centigrade for 15 days. Here anther grows into embryoids. Now embryoids will be transferred to rooting medium after 4 to 5 weeks. Then embryoids become plantlet. Applications of haploid plants. Induction of mutation. As we know, induced mutation are recessive, which are expressed in diploid cell. So, haploid provide a convenient system for the induction of mutants. Mutants from several plant species that are resistant to antibiotics, toxin and herbicides, etc. Second one is production of disease-resistant plant. Disease-resistant gene can be introduced while producing haploids. Third one is the production of insect-resistant plant. Next, production of salt-tolerant plant. Haploid can also used in cytogenic research, like production of aneuploids. It can also used in evolutionary studies. We study about ovary culture. हमारे सामने जो डायग्राम है वह फ्लावर के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स का है, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक फिलामेंट या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे स्टिग्मा कहा जाता है, स्टिग्मा के अंदर ओवरी और उसके भीतर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओवरी कल्चर में प्लांट से ओवरी ली जाती है। इसे हम एक्सप्लांट का नाम भी दे सकते हैं। ओवरी को फीमेल गैमेट भी कहा जाता है या उन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है जहां फ्लावर होते हैं। फ्लावर में पिस्टल फीमेल पार्ट है जहां ओवरी प्रेजेंट होता है। ओवरी कल्चर में लिया गया फ्लावर पॉलिनेटेड और अनपॉलिनेटेड हो सकता है। अब बात करते हैं पॉलिनेटेड फ्लावर की। तो जब एंथर में पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है तो यह ओवरी में ट्रांसफर होता है, तो इसे पॉलिनेटेड कहते हैं। यह एयर और इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है। अनपॉलिनेटेड फ्लावर, जब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर नहीं होता तो इसे अनपॉलिनेटेड फ्लावर कहते हैं। इस प्रकार हम पॉलिनेटेड और अनपॉलिनेटेड फ्लावर का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रोथ की। तो इसे न्यूट्रिएंट मीडिया में ओवरी या एक्सप्लांट को इनोकुलेट किया जाता है, जिसमें डिवीजन स्टार्ट होता है और वह मास ऑफ सेल बन जाता है। अब जब मास ऑफ सेल बन जाता है तो ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। इसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं, जहां पर हम आईवीएफ करा सकते हैं। जैसे ओवरी कल्चर में हम पॉलन ग्रेन्स को इंसर्ट कर सकते हैं। इसे इन विट्रो और आउटसाइड जो लिविंग सेल के बाहर होता है, इसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। नाउ ओवरी कल्चर में क्या होता है, यहाँ पर ग्रोथ बढ़ती जाती है और न्यू प्लांट्स बन जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। तो ओवरी एम्ब्रियो डेवलपमेंट के सारे स्टेप्स जो हैं इसमें हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि पॉलन ग्रेन्स और ओवरी जब मिलते हैं तो यह एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट से एम्ब्रियो की स्टडी की जा सकती है। फिर हम नेक्स्ट फाइटो हार्मोन्स की स्टडी भी कर सकते हैं। यहाँ पर फाइटो का मतलब प्लांट होता है और हार्मोन का केमिकल सब्सटेंस है जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है। इसके पश्चात हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं, जो कि मेल और फीमेल गैमेट के बगैर मेटिंग के यह फ्रूट डेवलप होता है। इसे फाइटो हार्मोन के रोल की स्टडी की जा सकती है। साथ ही साथ हम होमोजाइगस जीनोटाइप की स्टडी भी कर सकते हैं, जो कि हम कह सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, जिसमें जीन प्रेजेंट होते हैं। जीन के पेयर को हम एलील कहते हैं। जब दोनों एलील समान हो, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए तो उसे होमोजाइगस, और अगर कैपिटल ए स्मॉल ए हो तो इसे हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। ओवरी कल्चर के जरिए होमोजाइगस प्लांट
भी डेवलप किया जा सकता है। यह होमोजाइगस जीनोटाइप जो है केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा हम क्रोमोसोम को डबलिंग करके बना सकते हैं। फाइनली हम यह देख सकते हैं कि एंथर कल्चर हो या ओवरी कल्चर हो, हम एक हैप्लॉइड प्लांट को जनरेट कर सकते हैं।